سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنا آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے ساتھ ساتھ اس کے ہمسایہ ممالک کے خدشات کے حوالے سے، ان کے تحفظات کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح سے امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلا کا عمل مکمل ہو رہا ہے، ایئر بیسز خالی کیے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے 11 ستمبر کی اس ڈیڈ لائن کی طرف ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، امریکہ جو دی گئی تھی امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے، اور ساتھ ہی جو دیگر ممالک ہیں ہمسایہ ممالک افغانستان کے، وہ ان خدشات میں گھر چکے ہیں کہ افواج کی واپسی کے بعد جس طرح طالبان کنٹرول حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں افغانستان کا، تو یقیناً امن و امان کی صورتحال بھی خاصی مخدوش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ممالک جو طالبان کو اون نہیں کریں گے، جو ان کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ان کے لیے حالات خاصے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان بھی کچھ انہی خدشات کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے، اور کیا کچھ حالات ہو سکتے ہیں افواج کے انخلا کے بعد، وہ اس غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ اب امریکہ بھی اس سے کچھ ناراض ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنی سرزمین افواج کے اڈوں کے لیے استعمال کرنے کے طور پر انکار کر دیا ہے، لہٰذا امریکہ اور پاکستان کے مابین جو دوستانہ مراسم تھے وہ بھی کسی حد تک اب ویسے نہیں رہے جیسے ماضی میں تھے۔ اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے، ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کریں گے کہ امریکہ کیا طریقہ کار اختیار کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ایک جانب وہ یہ کہتا ہے کہ افواج کا انخلا مکمل طور پر یقینی بنایا جائے گا، دوسری جانب وہ یہی بیان دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ 11 ستمبر تک تمام امریکی جو ہیں یا تمام امریکی فورسز جو ہیں وہ افغان سرزمین چھوڑ دیں، کیونکہ جو صورتحال ہوگی امن و امان کی، اس کو دیکھتے ہوئے حتمی فیصلہ کیا جا سکے گا۔ کیا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر افغان امور سابق سفیر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد، آج کے اس پروگرام میں شامل گفتگو ہوں گے، ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے ہمسایہ ممالک کے تحفظات و خدشات کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ بتا دیجیے بریگیڈیئر صاحب کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مابین عسکری صورتحال اور سیکیورٹی کے حوالے سے وہ نہیں جانتے کہ مکمل انخلا کے بعد کیا ہونے والا ہے، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ جہاں تک وڈرال کا تعلق ہے امریکہ کا، تو انہوں نے بائیڈن نے اس کو 3-4 مہینے کا ایکسٹینشن تو دے دیا، ادروائز جو 1 مئی ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا، اور اس طریقے سے پہلے اوباما نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ڈرا ڈاؤن ہوگا، پھر وڈرال ہوگا، پھر ریسپانسبل وڈرال ہوگا، اور پھر ان کے بعد ایک بیلنس وڈرال کی بات ہو رہی تھی، لیکن بہرحال امریکہ کی فوجیں اور اس کے ساتھ ناٹو بھی ساتھ، اس کے نتیجے میں جس طریقے سے افغان فوج کو حوالے کر رہے ہیں، تو افغان فوج کو بھی خود پتہ نہیں تھا کہ یہ صبح نکلیں گے، ورنہ وہاں پر تو اسکریپ کلیکٹر آئے ہوئے تھے اور وہ بھی وہ چیزیں اٹھا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پیچھے نہیں دیکھ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہونے لگا ہے، کیونکہ ابھی اشرف غنی، عبداللہ اور اس کے علاوہ اس کی ٹیم گئی تھی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن اور اس کے جو ٹیم ہے پولیٹیکل، ان سے ملاقات کی ہے۔ اب اس میں بھی اس نے کچھ وعدے تو کیے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ افغانستان اب افغانیوں کے حوالے ہیں اور انہوں نے ان کا کوئی جو پرامن حل ڈھونڈنا ہے۔ لیکن جس طریقے سے جنگ میں تیزی آئی ہوئی ہے اور طالبان نے اوفینسو لانچ کیا ہوا ہے اور ایک سیول وار کی طرف افغانستان ڈرفٹ کر رہا ہے بڑے تیزی کے ساتھ، تو یوں لگ رہا ہے کہ اس کے جو اثرات ہوں گے، اور جس طریقے سے بائیڈن نے اپنے پالیسی میں کہا ہے کہ ریجنل ممالک اس کو سنبھالیں گے اور اس کے جو ذمہ داری ہے وہ یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز
सामने आ रहे हैं और इसके अलावा बाकी नेबर्स के लिए। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में कि डिप्लोमेटिक तौर पर थोड़ा सा पीछे था। इनको पहले से अपने पड़ोसियों के साथ सलाह मशवरे और एक कलेक्टिव अप्रोच अफगानिस्तान के बारे में या पॉलिसी बनानी चाहिए थी, जो कि वो नहीं बनाई। और अभी टाइम बहुत कम है और इसके नतीजे में अगर अफगानिस्तान में सिविल वार होता है, एक इम्प्लोजन होगा, तो सबसे ज्यादा असरात उसके नेगेटिव जो होंगे वो पाकिस्तान पर पड़ेंगे। और फिर पाकिस्तान अगर इस दौरान कोई सफारतकारी करता भी है तो उनके उस तरीके से खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकलेंगे, या अगर निकलेंगे तो वो ज्यादा दूर रस नहीं होंगे। तो यकीनन ऐसे हालात में मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के लिए वो सिचुएशन है जो कि वियतनाम से जब अमेरिका निकल रहा था तो कंबोडिया पर उन्होंने हमले शुरू किए थे और उनको मोरद इल्जाम ठहराया था। अभी पाकिस्तान पर हमले तो नहीं होंगे हवाई या कुछ उस तरीके से, लेकिन सब कन्वेंशनल वार की तरह पाकिस्तान को धकेला जा रहा है। और ये जो गेम स्पॉयलर्स है वो रोज बरोज कुव्वत पकड़ेंगे और उसके नतीजे में नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान में भी उस किस्म की कार्रवाइयां करेंगे और इस तरह ईरान भी मुतासर होगा और साथ साथ चाइना भी। सैयद साहब, ये मुझे बताइए कि कहा जा रहा है कि खित्ते में एक बड़ी गेम की शुरुआत होने वाली है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये गेम क्या हो सकती है और क्या अफगान सरजमीन हमेशा जंग के हालात में ही घिरी रहेगी? देख लो, अमन के तो अफगान सबसे पहले खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब रशिया आया था उस वक्त भी इनके हुकूमत ने बुलाया था और फिर उनके खिलाफ लड़ने भी लगे। दूसरी तरफ फिर अमेरिका जब आया तो नदरन अलायंस के कंधों पर आया, वो उनके टैंकों पर सवार होकर आए और अभी तालिबान ने उनको निकाल दिया। और वही भी अफगान है, तालिबान भी अफगान है, नदरन अलायंस भी अफगान है, अशरफ गनी भी, करजई भी, अब्दुल्ला भी सारे अफगान से। लेकिन खुद बैठे हुए हैं पिछले कोई 6-7 महीने से, बल्कि ज्यादा, और उसके बावजूद उनके दरमियान कोई मुआहिदा अमन का नहीं तय पा रहा है। बल्कि मैं यूं समझ लूं कि अफगानिस्तान को मेरे ख्याल में कि जो वार लॉर्ड्स, नॉन स्टेट एक्टर्स और आम मलेशियाज और इसके अलावा वार इकोनॉमी और इस किस्म के जो बाहर से इमदाद और इन चीजों के मेरे ख्याल में कुछ लत पड़ी हुई है, जिसकी वजह से खून खराबा भी उन्हीं का हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान भी उनको पहुंच रहा है। इसके बावजूद कभी पाकिस्तान पर ब्लेम गेम, कभी दूसरे पड़ोसी पर ब्लेम, और इसके अलावा खुद अपना घर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है अफगानियों की, और अगर इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते और इसके नतीजे में कोई खद्दोखाल तय कर लेते आइंदा के लिए, तो ये बेहतर होता। बनिस्बत जंग के जरिए, बंदूक के जरिए हुकूमत पर कब्जा करना और फिर एक परपिचुअल वार में, एक सिविल वार में खुद को मुसलसल एंगेज रखना और फिर उसका इल्जाम दूसरों पर धरना, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, ये अनफॉर्चुनेट बात है। और इसमें जाहिर है कि बाकी का भी हिस्सा है, गेम स्पॉयलर्स भी है, उनका भी हिस्सा है जो कि उनके इस चीज से फायदा उठाते हैं। जाहिर है कि जहां पर क्यास हो, कंफ्यूजन हो, जहां पर हुकूमत वीक होगी, जहां पर स्टेट थ्रेट नहीं होगा, तो वहां पर तो नॉन स्टेट एक्टर्स, वहां पर तो ऐसे बंजर जमीन पर तो फिर सांप और बिच्छू पलते हैं, फिर वहां पर तो जंगली दरिंदे आ जाते हैं, फिर वहां पर तो जाफरान की काश नहीं होती, वहां पर तो अमन का पौधा जैतून नहीं होता। ये बात है। सैयद साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान इस बयानिए को मुस्तरद करता है कि वो तालिबान का साथ दे रहा है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनका भी ये कहना है कि इस जंग में पाकिस्तान ने न सिर्फ माशी तौर पर करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाया, बल्कि 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी भी मारे गए हैं। यानी उनकी राय यह है कि पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। आप क्या समझते हैं इस पर? देखो, पाकिस्तान ने ये जो जंग में हिस्सा लिया था, फ्रंट लाइन अलाई बने थे, उनके जितने डिमांड थे उनको टेलीफोन कॉल पर पूरा किया था। ये पाकिस्तान की जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक जो पॉलिसी थी, ये उसके बिल्कुल खिलाफ था। वो एक डिक्टेटर था, उस पर प्रेशर था और उसने अपने वल्नरेबिलिटीज को छुपाने के लिए और अपने जो हुकूमत थी उसको दवाम देने के लिए एक बड़े का सहारा ले लिया। लेकिन उस वक्त भी जो सैन वॉइसेस दे बताते थे
کہ इस जंग से पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, इसके जरिए पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और उस वक्त हम खुद भी फौज में थे और ये बात कहते थे, लेकिन जाहिर है कि जो बड़ों का फैसला था उसके मुताबिक चले और वही नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा और मुसलसल उठाना पड़ा। वो मजबूरी या वो मजबूरी एक हद तक होती है। मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल बाद अगर 2003 में पाकिस्तान इससे निकल इसको इतना नुकसान न होता, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल इस जंग में खुद को एलाई समझकर और उसके बावजूद कि अमेरिका की तरफ से भी ब्लेम गेम था, अफगानिस्तान की तरफ से भी ब्लेम गेम था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी हो रही थी, माली और जानी नुकसान भी हो रहा था और ड्रोन हमले भी हो रहे थे, और फिर उसके बावजूद भी अपने लोगों के साथ एक दोगली पॉलिसी थी और उधर भी अब वो दोगली पॉलिसी का उस पर इल्जाम लगता रहा। अभी पाकिस्तान को मेरे ख्याल में कुछ समझ आ गए है कि इनके इन दो मोड़ से मजीद फायदा उठाने की अमेरिका भी कोशिश कर रहा है और जो यूरोपियन ममालिक भी है, और उसको चीन से दूर खींचने के लिए उस पर ये दबाव डाला जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में कि अब एक रियलिटी ये है कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान के साथ उनके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और उसके अलावा अस्करी सतह पर बड़ी स्ट्रेटेजिक और डीप रिलेशंस है। अब इस रिलेशंस में पाकिस्तान एक पिवट का किरदार कर रहा है, वो अदा कर रहा है एक पुल का रादर, जो कि इसकी कनेक्टिविटी के लिए एक टेस्ट केस है जो सीपेक है। और अगर यहाँ पर इस किस्म के हालात होंगे कि वहां पर अमन नहीं होगा, इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं होगे, तो फिर उसमें चाइना का जो विजन है BRI का वो आगे नहीं बढ़ सकेगा और अमेरिका उसको कंटेन करना चाहता है और इस कंटेनमेंट में पाकिस्तान का भी वो किरदार चाहता है। तो जाहिर है अब पाकिस्तान दोनों मतलब है कि पार्ट पर अपने पांव नहीं रख सकता, वहाँ एक तरफ पर अपना वजन बढ़ाना होगा और दूसरे के साथ एक एंगेजमेंट के रिलेशन रखने होंगे। और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान ने अपने पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में और जो नजर आ रहा है वो चाइना का इंतखाब कर लिया है। हाँ, इसके लिए जो एब्सोल्युटली नॉट है या अमेरिका के जो बाकी उनके हाथ में जो FATF है या इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है या जो बाकी इस किस्म के माली इदारे हैं, उसके जरिए पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ेगा, कुछ इंडिया की तरफ से भी दबाव भी बढ़ेगा और इसके अलावा जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो भी पाकिस्तान में दोबारा कार्रवाइयां करेंगे और इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में कि कौमों के जिंदगी में ऐसी चीजें आती है, अगर वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुर्बानी देते हैं तो फिर वो कुर्बानी रायगा नहीं जाती। हाँ, दूसरे मफादात के लिए दे दें तो फिर जाहिर इस जंग का नतीजा आप देख रहे हैं कि उसके लिए जो दी है वो रायगा गई है। ठीक है, ये बताइए ब्रिगेडियर साहब कि आप इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेस ना देने के फैसले को किस तरह से देखते हैं या जगह फराहम ना करने के लिए जो डिसीजन लिया गया है पाकिस्तान की जानिब से, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में जंग नहीं जीत रहा था तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया गया, क्योंकि माजी में अमेरिका के साथ खासी हद तक कोऑपरेट किया है पाकिस्तान ने, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का जो रवैया है वो पाकिस्तान की समझ से बाहर है। तो इस वक्त जो पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई है आपको किस हद तक वो दुरुस्त लगती है? देखिए, अपने पहले भी जो दिए गए थे तो छुप कर दिए गए थे, यहाँ तक कि आर्मी के या अस्करी क़यादत के बड़े सीनियर लोगों को पता नहीं था। दूसरी बात ये थी कि अड्डे पहले अयूब खान के जमाने में जो बटादेर का अड्डा दिया था और वहां से USSR के अगेंस्ट इसको U2 यहाँ से उड़ाकर उनके निगरानी की जाती थी या वहां पर उनकी जासूसी की जाती रही और इसके नतीजे में पाकिस्तान पर न्यूक्लियर के जरिए भी दबाव बढ़ा और उसके सैंक्शंस भी प्लेसलर अमेंडमेंट जो थे या इसके अलावा जो कैरी लोगर बिल वगैरह भी आए तो या जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ अगर जंग भी हुआ है तो दोनों पर सैंक्शन आए तो पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं मिली है अमेरिका की तरफ से जब भी उसका साथ दिया है। तो जाहिर है कि 70-72 साल की रिलेशनशिप में अगर आपका ट्रस्ट उस लेवल पर न बने और दूसरी तरफ पर चाइना के साथ 70 साल के रिलेशन में काफी ट्रस्ट बढ़े तो फिर जाहिर है कि ये रिलेशनशिप मेरे ख्याल में कि एक सिमत पर जाना
बेहतर है पाकिस्तान के लिए बनिस्बत जहां से उसको नुकसान उठाना पड़ा हो और फिर भी वो उतर जाए, तो ये तो एक फूल हर्डी अप्रोच होता है। दूसरी बात यह आ जाती है कि पाकिस्तान को इसके नतीजे में क्या करना पड़ेगा। यकीनन एक टेस्टिंग टाइम्स तो है, पाकिस्तान को ये कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका बड़ा मुल्क है, सबका पड़ोसी है, क्योंकि उसके असरात तो है। जो माली इदारे हैं जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा सफारतकारी में भी है। और तीसरी बात यह है कि उनके बहुत ज्यादा जो मिडल ईस्ट के ममालिक है उसके दोस्त हैं। इसके अलावा बाकी पर भी वो दबाव डाल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये दबाव और ये चीजें मुल्कों के कौमों के हिस्ट्री में आते हैं, और उसको अगर बैलेंस तरीके से और एक मुल्क की मफादात को सामने रखकर अगर अपने फैसले कर लेते हैं तो फिर उसके नताइज बेहतर होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके पर पाकिस्तान को खुसूसन अभी जो इमीडिएट खतरा है वो अफगानिस्तान की तरफ से है, और इसके लिए जितने भी हमारे इदारे हैं या बॉर्डर मैनेजमेंट है या इसके अलावा रिफ्यूजीज का जो इन्फ्लक्स होगा उनको संभालना है। इसके अलावा यहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर हमले करेंगे उनको कंटेन करना है। एक पॉलिटिकल जो वैक्यूम या हमारे पोलराइजेशन है उसको कम करना होगा, ताकि एक यूनिफाइड अप्रोच रहे और उनको अनबोर्ड करना होगा। और अगली बात ये भी है कि खुसूसन पड़ोसी के साथ पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक मैनूवर की तरफ जाना चाहिए, ताकि उनको साथ मिला रहे उनके मशवरे से आगे बढ़े। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपसे कुछ मजीद सवालात भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। क्या आपको 13 मार्च 2020 के बाद से घर के किराए और यूटिलिटी बिल्स की अदायगी में मसाइल का सामना है? क्या आप अपनी आमदनी का 30% या इससे ज्यादा हिस्सा घर के किराए की मद में खर्च करते हैं? तो आपकी माली मुआवनत के लिए न्यूयॉर्क स्टेट ने शुरू किया है इमरजेंसी रेंटल असिस्टेंस प्रोग्राम। अगर आपको इस प्रोग्राम की मजीद मालूमात चाहिए तो अपना का तरबियत याफ्ता अमला आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। अपॉइंटमेंट के लिए ईद जुमेरात दिन 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक कॉल करें 7185134700। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात व ख़दशात के हवाले से कुछ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। माहिर अफ़गान उमूर साबिक़ सग़ीर हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर महमद गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात को क्या अमरीकी मुतालबात ना मानने से मुंसलिक करना दुरुस्त है, और क्या अमरीका मुतालबात ना मानने पर पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकता है? जहां तक हम सेंटकॉम कमांडर का जो जनरल मैकेंजी है उसके अगर कांग्रेस को जो ब्रीफिंग थी टेस्टिमनी उसमें का अगर जायजा लेते हैं तो उसमें 3 चीजें थी। एक तरफ तो पाकिस्तान को थ्रेट किया था या थ्रेट आइडेंटिफिकेशन की थी कि अफगानिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स है और वो पाकिस्तान पर हमले करेंगे और वो उसके नतीजे में पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा। तो फिर मुतालिबा कर दिया कि हमें बेसिस दे दो ताकि हम इस थ्रेट को आपके लिए न्यूट्रलाइज कर सके ड्रोन्स वगैरह के जरिए, अब या अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए या सर्वेलेंस को इस्तेमाल करते हुए। और साथ साथ ब्लेम गेम भी लगा दिया कि तालिबान अब भी पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है। अब ये तीनों चीजों को जब हम देखते हैं तो हालिया जो हमले हुए हैं तो मैं यूं समझता हूं कि इसके जरिए अमेरिका का जो चाइना के साथ सर जंग है उसके जरिए सीपेक को स्लो कर सकते हैं। जो उसकी रफ्तार है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट उसके लिए जो चाहिए उनको सबोताज कर सकते हैं। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है जाहिर है उसके पीछे तो रा या इंडियस या CIA या बाकी इस किस्म के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कारफरमा हो सकते हैं और वो पाकिस्तान में इस किस्म का कार्रवाइयों को बढ़ोतरी दे सकते हैं।
जाहिर है कि ये थ्रेट आइडेंटिफिकेशन वैसे नहीं था, और इसके नतीजे में ये था कि अगर आप बेसिस देते हैं तो हम तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, वरना फिर ये आप पर अगर चढ़ दौड़ते हैं तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। अब अगर उनकी शेब उसके साथ शामिल हो जाती है तो यकीनी तौर पर दाइश के पीछे तो पहले भी जिस तरह ये 48 मुल्कों से 16,000 के लगभग जब सीरिया में ये क्रिएट हुए, और उसके बाद फिर जो इनका खुरासान चैप्टर यहाँ पर खुल गया, और फिर करजई साहब कहते थे, उनके पार्लियामेंटेरियन कहते थे कि उनको अमेरिका हेलीकॉप्टरों के जरिए मदद देता है। फिर तालिबान भी कहते हैं कि जब उनका खिलाफ हम घेरा तंग कर लेते थे तो हेलीकॉप्टर उनको उठा लेते थे, और उनके इलाज मुआवजा भी होता था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब नॉन स्टेट एक्टर एक करेंसी बन चुका है। पहले अमेरिका के जो वो कहता रिजीम चेंज करते थे, अब रिजीम चेंज वो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए कराएंगे, और उसका काउंटर फोर्स भी उन्होंने क्रिएट कर लिया है, और वो है ये कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह या मर्सनरीज वगैरह। अब उससे भी वो काम लेते हैं, या ड्रोन जो है वो भी एक किस्म का नॉन स्टेट एक्टर्स है, क्योंकि कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अच्छा, ये बताइए कि डू मोर की कहानी तो अब खत्म हुई, तो क्या पाकिस्तान को जो अमेरिका से किसी किस्म का कोई मराहत हासिल थी, कुछ फंड्स मिलते थे, कुछ अलाउंसेस मिलते थे इस जंग की मद में जो अफगानिस्तान में जारी थी, अब इस जंग के खात्मे के बाद या अफवाज की वापसी के बाद वो सिलसिला जारी रहेगा, या वो भी तमाम तर मराहत का सिलसिला खत्म हो गया? देख लो, जो नया बजट है जो बाइडेन साहब का, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ एरियाज, तो उसमें IMET है जो कि ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान के साथ रहेगा। और इसके अलावा जो हमारे F-16 है, उनके जो पुर्जे वगैरह या जो गनशिप्स है वो भी जारी रहेंगे। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ फील्ड्स में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जिसमें कुछ एजुकेशन के हैं, कुछ हेल्थ के हैं, या कुछ बाकी इस किस्म के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के हैं, वो भी रखे हुए। साथ साथ अफगानिस्तान के लिए भी उन्होंने एक फंड रखा हुआ है, उनके सिक्योरिटी के लिए भी और उनके भी ट्रेनिंग वगैरह के लिए। ये चीज तो उन्होंने अपने बजट में रखा है, और इसका अभी जो अफगानिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप उनसे भी वादा किया है। लेकिन ये क्यों रखा था, ये मेरे ख्याल में ये दो किस्म की चीजें, कैरेट भी होता है, स्टिक भी होता है, और एक गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी भी होती है, और साथ साथ एक बैड भी होता है ताकि कुछ लालच भी दे दे और कुछ काम भी उनसे ले ले। तो कंप्लीट अबंडेंस पाकिस्तान का कि अमेरिका उसको कर लेगा और उसको दिक्कत दे देगा कि चलो आपने अगर चाइना के गोद में बैठना है तो बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है जो स्ट्रेटेजिक, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक ब्रिज है सेंट्रल एशिया के साथ, वो एक ब्रिज है मिडिल ईस्ट के साथ चाइना के लिए, वो रशिया के लिए एक साथ अंडरबेली है जो गर्म पानियों तक पहुंच सकता है, और ये एशियन सेंचुरी है। और जहां तक चाइना की कंटेनमेंट की बात है या यहाँ पर जो क्वाड की बात हो रही है, तो इस कैलकुलस में पाकिस्तान की एक पोजीशन है। तो जाहिर है कि कुछ रिलेशंस तो वो रखेंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अलबत्ता वो गर्मजोशी या वो काम पाकिस्तान रूमर वाला नहीं करेगा, बल्कि वो उस सिलसिले में कुछ नो मोर का मंत्रा चलेगा। आपको क्या लगता है सैयद साहब कि वज़ीर आज़म इमरान खान को वाशिंगटन या सदर बाइडन को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, और जो दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात में अब किसी हद तक इख्तिलाफात आ गए हैं, किसी हद तक ताल्लुकात मुतासिर हुए, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को संजीदगी से लेना चाहिए अमेरिका को, और ये ताल्लुकात इन दौरों के बाद बहाल हो सकते हैं? देख लो, मेरे ख्याल में फिलहाल तो रूठे हुए हैं, क्योंकि एक कहता है टेलीफोन के लिए बेताब है, दूसरा कहता है टेलीफोन नहीं करना है, या अगले कहते हैं कि हमें टेलीफोन की जरूरत ही नहीं है। तो जाहिर है कि टेलीफोन तो तब होता है या दौरे तो तब होते हैं जब आप कोई बड़े नताइज उससे हासिल करते हैं, और उसके लिए पहले से काफी होमवर्क करना पड़ता है, डिप्लोमेटिक तौर पर बहुत सारी चीजें एश्योर होती है। तो उसके बाद वो जो सारे ऑप्टिक्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद दौरा होता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए अब अमेरिका के सदारती लेवल पर दौरा कुछ नियर फ्यूचर में मुझे बड़ी दुस्तियास नजर आता है। दूसरी बात ये है कि जहां तक
कौमों के ताल्लुकात की बात होती है तो इसमें न परमानेंट दोस्त होता है और न परमानेंट दुश्मन होता है, और ये मफादात की जंग होती है। और मफादात के लिए बाज़ औक़ात कुछ नरमी भी इख्तियार कर लेते हैं, कुछ दूसरों मुल्कों के जरिए भी कुछ सफारतकारी की जाती है और राह हमवार की जाती है, तो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अलबत्ता कोई बड़े डिसीजंस पाकिस्तान से ऐसे मौके पर तवक्को करना मेरे ख्याल में कि अमरीकी क़यादत के लिए मुश्किल नजर आते हैं, या उसके लिए इस किस्म की तगुदो और नियर फ्यूचर में मुझे नजर नहीं आती। इस तरह पाकिस्तान को अगर मौका मिलता है कि वो दौरा कर ले तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो दौरा कर लेगा। अलबत्ता उसको वहां पर क्या उससे मनवाया जाता है इसके लिए भी सफारतकारी और उसकी जरूरत होती है। लेकिन मेरे ख्याल में कि जब तक अमेरिका का अफगानिस्तान से पूरा इनखिला नहीं होता और अफगानिस्तान का जो कज़िया है विड्रॉल के बाद डेट के बाद जो अनफोल्ड नहीं होता, उससे पहले इस किस्म की चीजें मुझे नजर नहीं आती। ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर सैयद नज़ीर महमद आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की अफगानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि अफवाज के इनखला के बाद क्या अफगान सरजमीन पर वाकई अमन कायम रह सकेगा, या तालिबान की जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल हासिल करने की तगदों में वो मसरूफ़ अमल है, जिसकी वजह से अमन एक बार फिर दाव पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद किस हद तक हालात ख़राब होंगे और उसके जो हमसाया ममालिक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात कितने दुरुस्त साबित हो सकते हैं, इस पर हमने कुछ बातचीत की। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।